So students, in the previous class, we were discussing about a basic national income aggregates. There are altogether 8 basic national income aggregates. Let me remind you their meaning once again. The first aggregate was gross domestic product at basic national income aggregates. In the previous class, you came to know some of the basic national income aggregates. Let me repeat their meaning once again. The first national income aggregate was gross domestic product at market price. Now the question is, what does gross domestic product at market price mean? Gross domestic product at market price refers to gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. In formula, GDP at MP is equal to NDP at MP plus depreciation. मैंने कहा एक साल के दौरान एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाजार मूल्य को ही हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी, जिसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन. आपका नेक्स्ट टर्म था एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट एमपी इज gross domestic product at market price deducted by depreciation. In formula, NDP at MP is equal to GDP at MP minus depreciation. जब हम gross domestic product at market price में से depreciation को माइनस कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. मैंने कहा जीडीपी एट एमपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा दी जाती है तो हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है एनडीपी एट एमपी, जिसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तैयार होता है एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन. थर्ड टर्म GDP at FC. GDP at FC, gross domestic product at factor cost, or GDP at FC. It refers to gross money value. I repeat, it refers to gross money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. In formula, GDP at MP is equal to GDP at FC is equal to NDP at FC plus depreciation. I repeat,
GDP at FC refers to gross money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. In formula, GDP at FC is equal to NDP at FC plus depreciation. क्या होता है GDP at FC? तो एक साल के दौरान एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करने पर कुल खर्च जितने का पड़ता है, उन सभी खर्चों को ही हम कहते हैं GDP at FC. इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, GDP at FC is equal to NDP at FC plus depreciation. Fourth, NDP at FC. NDP at FC. Net domestic product at factor cost or NDP at FC, or you may call it as domestic income. It is also named as domestic income. NDP at FC or domestic income refers to GDP at FC deducted by depreciation. What is net domestic product at factor cost or domestic income? It is gross domestic product at factor cost deducted by depreciation. So the formula for calculating NDP at FC or domestic income will be GDP at FC minus depreciation. जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम. ये सभी के सभी डोमेस्टिक एग्रीगेट्स थे. इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेशनल एग्रीगेट्स की. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट at market price. Gross national product at market price. Gross national product at market price or GNP at MP. It refers to gross market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. I repeat, GNP at MP refers to gross market value of all the final goods and services produced by normal residents of a country during a period of 1 year. In formula, GNP at MP is equal to NNP at MP plus depreciation. एक साल के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाजार मूल्य को ही हम कहते हैं GNP at MP. एक साल के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाजार मूल्य को ही कहा दे जाता है GNP at MP. इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है NNP at MP प्लस डेप्रिसिएशन. मैंने कहा एक साल के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाजार मूल्य को, मार्केट वैल्यू को, मार्केट प्राइस के सम को ही कहा जाता है GNP at MP. इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है GNP at MP is equal to NNP at MP plus depreciation. Next,
NNP at MP, net national product at market price, or NNP at MP. It refers to gross national product at market price deducted by depreciation. I repeat, NNP at MP refers to gross national product at market price deducted by depreciation. जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना NNP एट MP इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, GNP एट FC, gross national product at factor cost, or GNP at FC. It refers to gross market value, money value. I repeat, gross national product at factor cost, or GNP at FC refers to gross money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. In formula, GNP at FC is equal to NNP at FC plus depreciation. GNP at FC होता क्या है? एक साल के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए गए उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन पर कुल खर्च जितने का पड़ता है उन सभी खर्चों को ही हम कहते हैं GNP at FC। मैंने कहा एक साल के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा कुल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन पर जो कुल खर्च पड़ता है उन सभी खर्चों को हम कहते हैं GNP at FC। इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है GNP at FC बराबर होता है NNP at FC प्लस डेप्रिसिएशन। एंड लास्टली NNP at FC NNP at FC, या फिर इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। आप इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कह लें, या फिर NNP at FC कह लें, या फिर आप इसे कह सकते हो नेशनल इनकम। NNP at FC is GNP at FC deducted by depreciation. In formula, NNP at FC is equal to GNP at FC minus depreciation. जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो कहलाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम। एक चीज मैं बता दूं कि इन सभी एग्रीगेट से संबंधित मैंने आप सबों को एक फॉर्मूला दिया, और ध्यान रहे वही एकमात्र फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा भी हर एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको अनेकों फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सवाल ये उठता है क्या हमें वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको वो तरीका जानना पड़ेगा कि कैसे आप खुद से फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। कुछ बेस है, उसके आधार पर आप फॉर्मूला तैयार खुद से कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा फोकस उसी पर रहेगा कि कैसे हम फॉर्मूला तैयार करें, कैसे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करें। मैंने कहा
अभी तक आपको 8 बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बताए गए। हर एक एग्रीगेट से जुड़ा हुआ मैं आपको एक फॉर्मूला दिया, लेकिन ध्यान रहे वही इकलौता फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा हर एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको अनेकों फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हम हर एग्रीगेट से जुड़ा हुआ, मान लीजिए जीडीपी एट एमपी है, तो जीडीपी एट एमपी से जुड़े हुए 6-7 फॉर्मूला है, तो क्या उससे संबंधित मुझे 6-7 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? उसी तरह हर एक एग्रीगेट से जुड़ा हुआ आपको अनेकों फॉर्मूला मिल जाएगा, तो क्या वो सभी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको एक बेस दिया जाएगा, उस बेस के आधार पर वो सारे के सारे फॉर्मूले आप खुद से तैयार कर सकते हो और न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाएगा? तो 3 बेस हैं जिसके आधार पर फॉर्मूला तैयार किया जाता है। पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है एनआईटी और तीसरा है एनएफआईए। इन सभी के बारे में मैं आप सबों को पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? द फर्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। Depreciation. The question is, what does depreciation mean? Depreciation means a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, due to passage of time, or due to expected change in technology. I repeat, depreciation means a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, due to passage of time, or due to expected change in technology. Fixed assets जैसे कि मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह की वैल्यू में जो गिरावट आती है, उनके निरंतर इस्तेमाल किए जाने के चलते, समय बीतने के चलते या तकनीकी परिवर्तन होने के चलते फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसी गिरावट को, उसी कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, जो गिरावट आती है, उनके निरंतर इस्तेमाल किए जाने के चलते, समय बीतने के चलते या फिर तकनीकी परिवर्तन होने के चलते फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला है, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स divided by estimated life of fixed asset. I repeat, annual amount of depreciation is equal to value of fixed assets divided by estimated life of fixed asset. Depreciation establishes the relationship between gross एंड नेट एग्रीगेट्स। डेप्रिसिएशन संबंध बनाता है ग्रॉस और नेट एग्रीगेट्स के बीच। कैसे? मैंने कहा डेप्रिसिएशन संबंध स्थापित करता है ग्रॉस और नेट एग्रीगेट्स के बीच। सवाल कैसे? तो जब हम ग्रॉस एग्रीगेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट एग्रीगेट। उदाहरण के लिए जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एक ग्रॉस एग्रीगेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन घटाओगे
तो आपको मिल जाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस ग्रॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेट। ग्रॉस एग्रीगेट जो है वो बदल जाएगा नेट एग्रीगेट में, आपको रिजल्ट मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने कहा डेप्रिसिएशन संबंध स्थापित करता है ग्रॉस एग्रीगेट्स और नेट एग्रीगेट्स के बीच। जब हम ग्रॉस एग्रीगेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है उसी का नेट एग्रीगेट। एग्जांपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किए, मिल गया नेट एग्रीगेट। वहीं दूसरी तरफ जब हम नेट एग्रीगेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रॉस एग्रीगेट। आई रिपीट, व्हेन वी ऐड डेप्रिसिएशन टू नेट एग्रीगेट्स वी गेट ग्रॉस एग्रीगेट्स। जब हम नेट एग्रीगेट्स में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रॉस एग्रीगेट। एग्जांपल, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये एक नेट एग्रीगेट है। इसमें जब हम डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस एग्रीगेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, ये एक बेस है। डेप्रिसिएशन इज अ बेस फॉर मेकिंग फॉर्मूला रिलेटिंग टू बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। सेकेंड है आपका NFIA, NFIA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad. Net factor income from abroad is factor income from abroad minus factor income to abroad. When we deduct factor income to abroad from factor income from abroad, what we get is called as net factor income from abroad. So we can say that net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad and factor income to abroad. Net factor income from abroad establishes the relationship between national aggregates and domestic aggregates. Net factor income from abroad establishes the relationship between national aggregates and domestic aggregates. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड संबंध स्थापित करता है नेशनल एग्रीगेट्स और डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के बीच। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ? व्हेन वी डिडक्ट NFIA from national aggregates, we get domestic aggregates, and when we add NFIA to domestic aggregates, we get national aggregates. Once again,
Net factory income from abroad is the difference between factory income from abroad and factory income to abroad. It establishes the relationship between national aggregates and domestic aggregates. How? When we deduct NFI from national aggregates, we get domestic aggregates. Let me give you an example of it. NNP at FC. Net national, I repeat, net national प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये क्या है? तो एक नेशनल एग्रीगेट है. अब इसमें से जब हम NFIA माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डोमेस्टिक एग्रीगेट. कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस जो नेशनल था दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. वही जब हम डोमेस्टिक एग्रीगेट में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब हम डोमेस्टिक एग्रीगेट में NFI को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल एग्रीगेट. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अंतर होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बीच. इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है NFI इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. NFI संबंध स्थापित करता है नेशनल एग्रीगेट्स और डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के बीच. कैसे? तो जब हम नेशनल एग्रीगेट में से NFI को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डोमेस्टिक एग्रीगेट. वहीं जब हम डोमेस्टिक एग्रीगेट में NFI को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल एग्रीगेट. नेक्स्ट, तीसरा बेस है आपका NIT, नेट indirect tax. Net indirect tax is the difference between indirect tax and subsidy. Net indirect tax is the difference between indirect tax and subsidy. The formula for calculating net indirect tax is indirect tax minus subsidy. And NIT establishes the relationship between MP, market price, MP and factor cost. FC. How? Yes. When we deduct NDP at MP, when we deduct NIT from market price, we deduct NIT, net indirect tax, to get factor cost, NDP at FC. And
when we add NIT to factor cost, what we get is market price. Net indirect tax. It is the difference between indirect tax and subsidy. The formula for calculating net indirect tax is indirect tax minus subsidy. Net indirect tax establishes the relationship between market price and factor cost. How? When we deduct NIT from market price, we get factor cost. And when we add NIT to factor cost, we get market price. नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अंतर है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का. नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. नेट इनडायरेक्ट टैक्स संबंध स्थापित करता है मार्केट प्राइस एग्रीगेट्स और फैक्टर कॉस्ट एग्रीगेट्स के बीच. कैसे? तो जब हम मार्केट प्राइस एग्रीगेट्स में से एनआईटी को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट एग्रीगेट्स. वहीं जब हम फैक्टर कॉस्ट एग्रीगेट में एनआईटी को प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्केट प्राइस एग्रीगेट. अब आपको कोई भी वो जो 8 एग्रीगेट्स आपको बताए गए थे उनमें से किसी भी एक एग्रीगेट के बारे में आपको अगर फॉर्मूला तैयार करना है तो आप कैसे तैयार करोगे? वो जो तमाम एग्रीगेट्स रहे उसमें से कोई भी एक एग्रीगेट आप सिलेक्ट कर लो और उसका अगर आपको फॉर्मूला तैयार करना हो तो आप कैसे तैयार करोगे? तो लेट मी सिलेक्ट एन एग्रीगेट. मैं एक एग्रीगेट सिलेक्ट कर लिया, मान लो NNP at MP. NNP at MP. And now I have to make a formula for it. GDP at FC. ये दो एग्रीगेट्स दिए गए हैं, मुझे फॉर्मूला तैयार करना है. NNP at MP का मुझे फॉर्मूला तैयार करना है GDP at FC के सहारे. कैसे? तो when we deduct depreciation, when we deduct depreciation from gross aggregate, when we deduct depreciation from gross aggregate, we get net aggregate. When we add NFI to domestic aggregate, we get national aggregate. And when we plus NIT to factor cost, we get market price. So the formula is complete. NNP at MP is equal to GDP at FC minus depreciation plus NFI plus NIT. एक और फॉर्मूला NDP at FC. NDP at FC का हमें फॉर्मूला तैयार करना है किसके आधार पर? तो GNP at FC के आधार पर. तो हमें क्या चाहिए? नेट चाहिए. है क्या? ग्रॉस. ग्रॉस में से माइनस करो डेप्रिसिएशन, मिल जाएगा नेट. नेशनल में से माइनस करें NFIA,
मिल जाएगा डोमेस्टिक। प्रोडक्ट सेम है और फैक्टर कॉस्ट सेम है, सो द फॉर्मूला विल बी GDP at FC is equal to GNP at FC minus depreciation minus NFI। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? सर हाँ सर फर्स्ट वाले में जीडीपी एट एमपी होगा कि एट एफसी होगा? फर्स्ट वाले में जीडीपी एट एफसी होगा या एमपी होगा? आप किसी के आधार पर भी वो फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जीडीपी एट एफसी में लिखा हूं तो एफसी के आधार पर ही होगा। आप चाहें तो एमपी के आधार पर भी ये फॉर्मूला तैयार कर सकते हो, ये पर बदल जाएगा। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, ठीक। अगर एफसी के आधार पे करना है तो एफसी अगर यहां लिखे तो आपको लिए लिखना होगा प्लस NIT। ओके सर। हर एक एग्रीगेट, बाकी के बचे हुए जो सातों एग्रीगेट हैं उसके आधार पर एक एग्रीगेट का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। जैसे कि NNP एट MP है तो NNP एट MP का फॉर्मूला बाकी के जो बचे हुए 7 एग्रीगेट्स हैं उसके आधार पर फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये रटोगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे फॉर्मूला तैयार किया जाए। और वो फॉर्मूला तैयार किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, NIT एंड NFI। और कोई फर्दर क्वेश्चन? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। घर पर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, ठीक। और अगले क्लास में आपको न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं सिखाऊंगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू सर।